Hello students, this is lecture 5 in the series of e-content for BA1. I am Shobha from Government National College, Sirsa. And today we are going to discuss questions and answers of the chapter 2, choosing our universe. There are two types of questions which are one or two sentences and of 5 lines. Means we have to answer either in one or two sentences or within 5 lines. So firstly we are taking up short answer type questions which we have to answer according to the essay. Answer the following questions using a word, a phrase or one or two sentences each. What idea does the chapter discuss? इस ऐसे में कौन सा विचार डिस्कस किया गया है? So we know that this chapter discusses the idea of the origin of the universe. Firstly we will write that this chapter discusses the idea of the origin of the universe. After that we will write that this essay is an excerpt from the Grand Design written by Stephen Hawking and Leonardo Mlodinow, and this is a thought-provoking and innovative essay, and we have to say that this essay tells us many points about the origin of the universe. Still we have not reached at the end of the search that how the universe was originated, but this chapter tries to give some answers about the puzzle of the origin of the universe. कि ये चैप्टर ये ऐसे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विचार जो है उसको डिस्कस करता है, उसके बारे में अलग अलग थियरीज और बिलीफ्स हैं उसके बारे में हमें बताता है. Second question is describe Bumba according to our book Literature and Language. First, according to Bosongo people of Central Africa, in the beginning there was only darkness, water and the great god Bumba. कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो केवल बुम्बा, पानी और अंधेरा था. One day Bumba in pain from stomach ache vomited up the sun. बुम्बा के पेट में दर्द था, उन्होंने उल्टी की. In time the sun dried up of some water leaving land, but Bumba was still in pain and vomited some more. This time he vomited up the moon, the stars and animals like the leopard, the crocodile, turtle and finally man. तो बुम्बा ने जो उल्टी की उससे ये सभी चीज़ें बनी हैं जिसमें चांद, सितारे और एनिमल्स जैसे कि लेपर्ड हैं, क्रोकोडाइल हैं, ये सब चीज़ें बनी हैं. तो हमारे चैप्टर में बुम्बा के बारे में ये बातें कही गई हैं. Third question is what joke is there in the book regarding एथेनॉल. एथेनॉल के बारे में इस चैप्टर में क्या मजाक किया गया है? तो these authors say that firstly God tried to make human beings from mud and earth, then he tried to make human beings from wood, and thirdly he made human beings from white and yellow corn. After giving this theory, they joke that today we make ethanol from corn, but so far haven't matched the maker's feat of constructing the people who drink it. तो कहते हैं कि आज हम एथेनॉल से शराब बनाते हैं जो कि जो लोग पीते हैं, हम उनका पैर बनाने के बारे में भी नहीं सोच सकते कि भगवान ने तो
मक्के से इंसान को बना दिया, मगर आज हम मक्के से इंसान का पैर भी नहीं बना सकते। तो ये मजाक इस चैप्टर में किया गया है एथेनॉल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज that why the authors believe that humans are recent creations. So we are reading from the text which says that one thing that may have been apparent even in early times was that either the universe was a recent creation or else human beings have existed for only a small fraction of cosmic history. लेखक कहते हैं कि या ये बात क्लियर है कि या तो यूनिवर्स अभी नया ही बना है या फिर ह्यूमन रेस जो है, मानव की जो जाति है, वो इस पे बहुत कम समय से इस पे है, बहुत पुरानी नहीं है. दैट इज़ बिकॉज द ह्यूमन रेस has been improving so rapidly in knowledge and technology that if people had been around for millions of years, the human race would be much further along in its mastery. कि मानव जो प्रजाति है वो अपनी ज्ञान में और तकनीक में इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है कि यहाँ पर अगर लोग मिलियन सालों से यहाँ पर होते तो ये जाति बहुत आगे चली गई होती. तो ये ऑथर्स का लॉजिक है कि मानव प्रजाति बहुत पुरानी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर ज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बिग बैंग. तो बिग बैंग मीन्स बिग ब्लास्ट. अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी, the energy of the universe was concentrated into a tiny region. There was high density and temperature. बिग बैंग का मतलब होता है बड़ा धमाका. तो बिग बैंग थियरी के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो थी वो एक छोटे से क्षेत्र में सीमित थी. And there was high density and temperature. There was a big blast and universe came into existence because of this blast. कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान और घनत्व था, उस वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उसी वजह से यूनिवर्स बना है. स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड मॉलिनो बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ बिग बैंग. जब ये चैप्टर समाप्त होता है तो स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मॉलिनो इस बात में विश्वास करते दिखाई देते हैं कि यूनिवर्स का जो बना था वो बिग बैंग की थियरी से बना हो सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विच वी हैव टू आंसर इन 5 लाइन्स. डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल. शीर्षक की सार्थकता पर विमर्श कीजिए. So this is the answer. That title of the essay is Choosing Our Universe. This essay discusses various beliefs and theories about the origin of the universe. कि इस essay का टाइटल Choosing Our Universe है और ये बहुत तरह के विश्वास और सिद्धांत देता है कि ब्रह्मांड कैसे बना था. Beliefs of Bosongo people, Mayans people and Old Testament आर डिस्कस्ड. कि बशोंगो लोगों का विश्वास, मायन लोगों का विश्वास और ओल्ड टेस्टामेंट क्या कहता है ये इसमें बताया गया है. क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन मिथ एंड साइंस अबाउट द ओरिजिन इज आस्क्ड. कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जो कि क्रिएशन मिथ में पूछा जाता है और साइंस भी पूछता है कि ब्रह्मांड कैसे बना. ये इस ऐसे में पूछा गया है. थियरीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एंड बिग बैंग आर डिस्कस्ड. तो इस ऐसे में विस्तृत होते हुए ब्रह्मांड को और बिग बैंग से कैसे संसार बना था इसके बारे में भी जिक्र किया गया है. स्टिल देयर इज़ नो यूनिफॉर्म थ्योरी. फिर भी अभी तक ये पता नहीं है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत ठीक है. इट इज़ अप टू रीडर्स विच थियरी दे वांट टू बिलीव. ये रीडर्स के ऊपर छोड़ा गया है कि वो कौन से
तथ्य पर विश्वास करते हैं कि कैसे ब्रह्मांड बना था। सो टाइटल इज़ एप्ट बिकॉज रीडर्स हैव टू चूज़ विच थियरी दे वुड लाइक टू बिलीव। तो ये रीडर के ऊपर छोड़ा गया है कि उन्हें चुनना है कि कौन सी थियरी ठीक है। तो इस वजह से टाइटल बिल्कुल रेलिवेंट है, बिल्कुल ठीक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द फायस्को कि फेलियर क्या है। फायस्को मीन्स फेलियर, फेल हो जाना, नाकामयाब हो जाना। तो कौन से फेलियर का जिक्र किया गया है हमारे ऐसे में। वी आर रीडिंग द आंसर। अकॉर्डिंग टू माइंस ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, द मेकर ट्राई टू मेक ह्यूमन बींग्स फ्रॉम मट बट दे स्पोक नॉनसेंस। Then the maker fashioned them from wood, but they were dull. He decided to destroy them, but they escaped into forest. After this fiasco, the maker constructed humans from white and yellow corn. The failure of becoming unsuccessful in making humans from wood is called fiasco. तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भगवान ने मैक्सिको लोगों के अकॉर्डिंग, मैक्सिको के जो माइंस लोग हैं उनके अकॉर्डिंग भगवान ने इंसान को पहले मिट्टी से बनाया, फिर उनको वुड से बनाया, मगर वो लोग डल थे और भगवान ने उनको नष्ट कर दिया। और इस फेलियर के बाद, यानी कि फेलियर कौन सा है, जब भगवान ने इंसान को पहले मिट्टी से बनाया, फिर उनको लकड़ी से बनाया, तो उसमें कामयाब नहीं हुए भगवान, तो इसको फायस्को कहा गया, इसको फेलियर कहा गया है। Next question is, what does the scriptures say about the origin of the universe? So one scripture is described in this essay, and this is Old Testament, which is part of the Great Bible. तो उस ओल्ड टेस्टामेंट ने क्या कहा है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इन आवर book this is said that according to the Old Testament, God created Adam and Eve only 6 days into creation। कि ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग भगवान ने एडम और ईव, जो कि मानव के पूर्वज माने जाते हैं बाइबल में, उनको सिर्फ 6 दिनों में बना दिया था। बिशप ऊसर, हमारे जैसे पुजारी होते हैं उस तरह के जो बिशप ऊसर थे, जो कि आयरलैंड में सबसे प्रमुख माने जाते थे, तो अकॉर्डिंग टू बिशप ऊसर, प्राइमेट ऑफ ऑल आयरलैंड फ्रॉम 1625 to 1656 placed the origin of the world even more precisely at 9 in the morning on October 27, 4004 BC। जो बिशप ऊसर थे उन्होंने बिल्कुल जो टाइम बताया वो प्रिसाइज बताया, कि उन्होंने कहा कि 9 बजे सुबह 27 अक्टूबर 4004 BC को ब्रह्मांड बना था। ऑथर्स कहते हैं वी टेक ए डिफरेंट व्यू। यहाँ पर ये ओल्ड टेस्टामेंट का व्यू नहीं है, ये ऑथर्स का व्यू है। दैट ह्यूमन्स आर ए रिसेंट क्रिएशन बट दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगैन मच अर्लियर अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो लास्ट में लाइनें बोली हैं ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि ये ऑथर्स का व्यू है, जो स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड मेलोडिनो है उनका व्यू है ये। हमें जो आंसर देना है वो 27,4004 BC, ये है हमारा आंसर। कि धार्मिक ग्रंथ जो बाइबल है वो ये कहता है कि ब्रह्मांड 27 अक्टूबर 4004 BC को 9 बजे सुबह बना था। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द टोन ऑफ द ऐसे। ऐसे की टोन कैसी है, लय कैसी है, किस तरीके का ऐसे है ये। तो आंसर इज़ द टोन ऑफ द चैप्टर इज़ थॉट प्रोवोकिंग, सोच को जगाने वाली टोन है। इंटरेस्टिंगली इट स्टार्ट्स बाय मेंशनिंग द बिलीव्स ऑफ बोशोंगो पीपल अबाउट द ओरिजिन। कि ये बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से बोशोंगो लोगों का विश्वास
डिस्क्राइब करते हुए स्टार्ट होता है। देन बिलीफ ऑफ मायंस इज ऑल्सो डिस्कस्ड, मायन लोगों का पास भी बताया गया है। क्वेस्ट ऑफ क्रिएशन मिथ इज ऑल्सो मैंशनड, ये भी बताई गई है कि क्रिएशन मिथ किस चीज़ का आंसर ढूंढते हैं। The authors show their belief in the law of expanding universe and moving galaxies given by एडविन हबल। जो लेखक हैं इसके वो अपना जो विश्वास है वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और एडविन हबल की थियरीज में अपना विश्वास बताते हैं। They show a possibility of Big Bang and thus try to awaken the thoughts of the readers about the origin। तो वो जो लोग हैं लेखक वो लोगों को कहते हैं कि शायद बिग बैंग पॉसिबल था और इस तरीके से वो सोच विचार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विचार जगाने का प्रयास करते हैं। सो द टोन ऑफ द चैप्टर इज थॉट प्रोवोकिंग। So this was for today's lecture, short questions and answers in 5 lines each, and thank you very much for listening this video. And if you want to master the questions, you have to go through this video again and again. So firstly read the chapter mindfully, then you have to try to answer yourself, and after doing that you have to listen this video again and again, so you will be able to answer all the questions. Thank you very much.